Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. Welcome in today's class. I am Ajay Prakash Tiwari welcoming you to all on the behalf of Subrat Singh Children Academy Jaunpur, and as you know at present your chapter number 3 human reproduction is running, and in the perspective of that in previous classes we have discussed about the introductory portion of the menstrual cycle, and that was menstrual cycle part number 1, in which we have discussed about the various terms those were related to this cyclic changes. In today's class we are going to find out the graphical representation of the menstrual cycle as well as various hormones and their impact on the ovaries as well as on the uterus during this cycle. So here we will discuss various hormones those are released by the pituitary gland. In that we are going to discuss about the FSH, follicle stimulating hormone, as well as LS, luteinizing hormone secreted by the pituitary, and we will also discuss about the various hormones those are released by the ovaries. Yes, dear students, you are now going to watch an animated video of the menstrual cycle. You can see here the hypothalamus is just release a factor that was GnRH. Under the influence of that, pituitary gland will release certain kind of factors or hormones. Those are going towards their target side, that will be female reproductive tract, and they are going to influence the female reproductive tract. First, changes in the vagina as well as cervix. Then after you will see uterus, then after you will see fallopian tubes, those are also known as oviduct, then ultimately ovaries, and ovaries will start to release certain kind of hormones, and earlier they will release estrogen and later on progesterone. You can see here, and under the influence of the estrogen, high level of the estrogen, the mucus that was deposited into the cervix got thickens and removed and leave a pathway for the entry of the sperm, and at the same time by the process of insemination male will release the sperm. Here you can see egg is just released by the ovary and reaches to the ampulla, and sperm that was deposited by the male will start their journey towards the ampulla region, and they will meet with each other by the process of what? Fertilization. At the same time uterus also prepare itself for the receiving this fertilized egg by maintaining the endometrial lining, and under the influence of estrogen hormone these endometrial lining got thick and glandular and start their secretions for the nourishment of the ovum. At the same time mucus also again got deposited under the influence of the progesterone hormone to prevent the entry of other sperm, and if fertilization will take in place endometrial lining will remain the same and there will be implantation, and if there is no fertilization in that condition the endometrial lining got shed off. You can see from here those prepared themselves for the implantation. So without wasting the time I am starting with this graphical representation. So here we have categorized this graphical representation into 4 categories. The category number 1 is uterine event. Here we will discuss that how endometrial, that is the innermost lining of the uterus, got set off under the influence of certain hormones, and how it again rebuild themselves and become glandular. यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे endometrial lining टूटी और टूटने के बाद कैसे वो फिर से रिपेयर होकर ग्लैंडुलर हो गई. In the ovarian hormone events, here we will search it out for the 2 hormones. Those were estrogen, it will released by the follicular cells, and progesterone that will be released by the corpus luteum, and what are the impact of these estrogen and progesterone on the lining of the uterus. In the next event, that is ovarian event, we will find it out how the primary follicle got converted into mature Graafian follicle that contains secondary oocyte, and later on by the process of ovulation it released the ovum. And in the pituitary hormone level we will discuss about the 2 hormones, those are as you know FSH and LH, and how they impact the development of follicles or follicular cells. So here I am starting with the event number 1, uterine event. So as you know the menstrual cycle that is nearly of 28 days. तो हम एक जनरल सा रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं. 13, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 28. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि 14वें दिन क्या हो जाता है बेटा, ओव्यूलेशन हो जाता है. तो 14वें दिन अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो पहले फेज़ में आपको मालूम है क्या होगा कि 1 से 5वें दिन तक जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ये टूट के बाहर आती है, और इसको हम बोलते हैं क्या, मेंसेस.
ठीक है। और ये जो मेंसेस है बेटा, मेंसेस जो आपको दिख रहा है ये फेज नंबर 1 का पार्ट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज आपको दिख रहा है ये क्यों हुआ है, और फिर आप यहाँ से देखेंगे डे 6 से लेके डे 13 तक आपको दूसरा फेज देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलोगे फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ पे पहले एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटी, वो क्यों टूटी, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर हम देखें ओवेरियन हार्मोन इवेंट में, तो जो हार्मोन नंबर 1 था जिसका नाम था प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल बहुत कम था। तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग थी टूटी। अब ये जो लो लेवल है प्रोजेस्टेरॉन का, ये काम कर देगा स्टिमुलस किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। एंड नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड विल स्टार्ट टू रिलीज द FSH। तो यहाँ पे हम पहला हार्मोन ले लेते हैं, कौन सा, FSH। चूँकि डे 5 तक इसका लेवल क्या होगा, बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। उसके बाद जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो ये अगले फेज में धीरे धीरे FSH को रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा। तो FSH का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ते 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 डे 14 तक ये कहाँ पहुँच गया, पीक पर पहुँच गया। अब जब ये FSH हार्मोन लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, स्टिमुलस की वजह से निकला, तो जो ओवरीज हैं इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओवरीज में आपको मालूम है पहले जो प्राइमरी फॉलिकल थी, अब ये किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो गई। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप सभी को मालूम हो चुका है, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ये टर्सरी फॉलिकल में। और फिर आपकी ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट होने वाली है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो नाउ प्राइमरी फॉलिकल गॉट चेंज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर आपकी प्राइमरी फॉलिकल किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गई, तो आपको मालूम है कि यहाँ के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर हार्मोन निकालना शुरू करेंगी, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसा पहले था लो था, अब ये लो बना हुआ है कहाँ तक, डे 14 तक। लेकिन जो दूसरा हार्मोन था जिसको आपने एस्ट्रोजन कहा था, जैसे जैसे ये फॉलिकल मैच्योर होती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। चूँकि ये मैच्योर हो रही हैं और सिक्रीट कर रही हैं तो बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता जब हम पहुंच जाते हैं डे 14 तक, तो इस हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ, पीक पर चला जाता है। तो ये जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, दिस वन इज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, उस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटी थी ये रिपेयर वर्क स्टार्ट करती है। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की रिपेयरिंग किसकी वजह से स्टार्ट हो रही है, एस्ट्रोजन की वजह से। तो जैसे जैसे ये एस्ट्रोजन क्या होगा, सिक्रीट होता जाएगा, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग मोटी होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो लाइनिंग पतली थी वो धीरे धीरे अब क्या हो रही है बेटा, मोटी होती जा रही है। और ये हम देखेंगे कहाँ, डे 14 तक। चूँकि अब इनकी जो थिकनेस है नियरली 3 mm की हो चुकी है, और यहाँ से लेके जो आप देख रहे हैं और डे 13 तक, यहाँ तक इस फेज़ को हमने क्या कहा, फॉलिकुलर फेज। एंड दिस फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज proliferative phase because here endometrial lining got proliferated। तो ये सब रिपेयरिंग वर्क किसकी वजह से हुआ, रिपेयरिंग वर्क हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब तक का इवेंट एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो था उस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो टूट गई और मेंसेस के रूप में डे 5 तक बाहर आई। अब जो लो लेवल था प्रोजेस्टेरॉन का, इसने स्टिमुलस का काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम पड़ा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो ओवेरियन फॉलिकल्स थे ये मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। और जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो गए तो इन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता गया, एंडोमेट्रियम में रिपेयरिंग का वर्क भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। अब क्या होगा, एक और पर्टिकुलर हार्मोन जब FSH का लेवल बेटा पीक पे पहुंच जाता है, और जब FSH का लेवल पीक पे पहुंचा, एस्ट्रोजन का लेवल भी पीक पे पहुंच गया। अब ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि अब क्या करिए आप, FSH को रिलीज करना बंद करके LH को रिलीज करना स्टार्ट करिए। तो दूसरा हार्मोन जो LH था, ये पहले आप यहाँ से देख सकते हैं, ये LH का लेवल भी स्टार्टिंग में बेटा नॉर्मल ही है बिल्कुल, क्योंकि LH स्टार्टिंग में सिक्रीट नहीं हो रहा है।
अब जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो ये धीरे धीरे आप यहाँ से देखेंगे LH का सिक्रीशन होगा, और जब LH का सिक्रीशन हो जाएगा इस 14th डे पे, तो ड्यू टू LH जो आपका अगला प्रोसेस है वो हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। मतलब LH के इन्फ्लुएंस के कारण अब जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो गई है, और रप्चर होने के बाद इन्होंने क्या रिलीज़ कर दिया है, सेकेंडरी oocyte को बाहर कर दिया है। और ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर आया है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। मतलब इस 14वें दिन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। और ये ओव्यूलेशन किसकी वजह से हो रहा है, इस LH हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, ये आपका है FSH और ये है LH। तो ये LH ये पहुंचा पीक पे, और इस पीक की वजह से क्या हुआ, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कराने के बाद इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। और आपका दूसरा हार्मोन था FSH, ये भी पीक पे पहुंच गया, और पीक पे पहुंचने के बाद इसका लेवल डाउन होगा, क्योंकि अब किसी और फॉलिकल के डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte अब बन चुका है। तो एक समय में एक ही बेबी को अफोर्ड किया जा सकता है, इस वजह से इसका लेवल अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। अब आप यहाँ से देखें, ओव्यूलेशन अगर हो गया, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, आगे चल के अगर प्रोसेस होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर होगा तो क्या होगा, अब ये एक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है यहाँ से, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉर्पस लूटियम। ये बेटा क्या है, कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या था, डाउन था। ये चूंकि अब कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर। और अगर प्रेगनेंसी मेंटेन है तो ये बना रहेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर से इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, और ये दिख रही है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई। दूसरा हार्मोन जो आप देख रहे हैं एस्ट्रोजन, चूंकि इन्होंने क्या करा दिया है, रिपेयरिंग वर्क करा दिया है, और ये धीरे धीरे इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी ये और ज़्यादा मोटी हो गई है बेटा, थिक हो गई है, और नियरली अभी 5 mm की हो चुकी हैं। अब यहाँ से देखिए, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहेगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम भी वहाँ पे रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट होके किसमें, कॉर्पस एल्बिकैंस में चेंज हो जाएगा। और जब ये डीजनरेट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम, तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल करेगा, और फॉल करने के बाद फिर से अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिए एस्ट्रोजन का लेवल भी बेटा अभी ठीक ठाक चल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये सारा इवेंट हो चुका है। अब ये आप यहाँ से देखें एक बार फिर से, दूसरा यहाँ से मैंने बताया FSH जो क्या था, पहले पीक पे था, उसके बाद इसका लेवल नॉर्मल हुआ। दूसरा LH, चूँकि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है तो LH का लेवल भी आगे चल के क्या हो जाना है, नॉर्मल हो जाना है। तो ये है एक ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक बार हम फिर से आपको क्विकली रिकैप कराते हैं। टोटल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको 4 इवेंट में हमने बांट दिया, यूटेराइन इवेंट, ओवेरियन हार्मोन एज वेल एज ओवेरियन इवेंट, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। यूटेराइन इवेंट में देखेंगे कैसे यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग थी वो टूटी और फिर से कैसे वो रिपेयर हुई। ओवेरियन हार्मोन में देखेंगे हम 2 हार्मोन, एक एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल आपको यहाँ से दिखाया गया है। फिर आप देखेंगे ओवेरियन इवेंट में कैसे प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो गई, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में FSH और LH की क्या कंडीशन रही है। तो एक बार हम फिर से क्विकली रिकैप कराते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था तो उस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो टूटी, टूटने के बाद मेंसेस के रूप में बाहर आई और फेज नंबर 1 को बनाया, जिसको हमने कहा मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये जो लो लेवल था प्रोजेस्टेरॉन का, इसने स्टिमुलस का काम किया पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, FSH। तो ये FSH रिलीज होना शुरू हो गया है। FSH के इन्फ्लुएंस के कारण जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल थी ये किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गई। FSH रिलीज होता चला गया और 14वें दिन पीक पे पहुंच गया, और उसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गई, जो कि मैच्योर है। अब जो आपकी फॉलिकुलर सेल्स मैच्योर हुई तो उन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट किया। ये एस्ट्रोजन हार्मोन देख रहे हैं जैसे जैसे मैच्योर होती जा रहे हैं, इनका लेवल बढ़ता हुआ जाता हुआ 14वें दिन मैक्सिमम यानी पीक पे पहुंच गया। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो था और अभी भी लो बना हुआ है,
क्यों? क्योंकि इसको जो सेक्रेट कर रहा है अभी वो बना ही नहीं था। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, इस वजह से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हुई तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये फॉल होगा और अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये पहला फेज आपने देखा मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग एकदम कमजोर थी, टूट के निकल गई। फॉलिकुलर यानी प्रोलिफेरेटिव फेज में इनका प्रोलिफेरेशन यानी रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, नियरली 3 mm की है। और फिर उसके बाद 14वें दिन आप देख रहे हो ओवुलेशन, जहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी ओसाइट को बाहर कर रही है। लास्ट में आप डे 15 से लेकर 28 तक जो लास्ट फेज है उसको आप देख रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, सिक्रेटरी और लूटियल फेज, सिक्रेटरी और लूटियल फेज। सो अगर हम कंक्लूजन साइड में जाएं तो कंक्लूजन साइड में आपको देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिगिनिंग में काफ़ी कम है, एस्ट्रोजन का लेवल बिगिनिंग में काफ़ी कम है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 14वें दिन से पहले तक कम रहेगा, एस्ट्रोजन का लेवल 14वें दिन तक धीरे धीरे बढ़ेगा और 14वें दिन पर मैक्सिमम पे जाएगा। एफएसएच का लेवल कहाँ आप देखेंगे 5वें दिन तक बिल्कुल भी कम था, 5वें दिन के बाद ये बढ़ता हुआ 14वें दिन मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा। एलएच का लेवल 14वें दिन से पहले यानी 13वें दिन तक बिल्कुल भी नहीं था, 14वें दिन ये मैक्सिमम पे था और उसके बाद धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगा। तो फिर से देखें एफएसएच जो था इसका लेवल स्टार्टिंग में कम था, धीरे धीरे बढ़ा, 14वें दिन मैक्सिमम पे होने के बाद फिर से ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर गया। उसके बाद एलएच का लेवल स्टार्टिंग में 13वें दिन तक कम था, 14वें दिन मैक्सिमम पे हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये भी डिक्लाइन कर जाएगा। एस्ट्रोजन स्टार्टिंग में कम था 5वें दिन तक, 5वें दिन से बढ़ना स्टार्ट किया, 14वें दिन मैक्सिमम पे आया, उसके बाद कुछ समय के लिए और बना रहेगा, फिर धीरे धीरे ये भी नॉर्मल यानी डिक्लाइन स्टेज में आएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 14वें दिन तक कब रहेगा, 14वें दिन के बाद बढ़ना स्टार्ट करेगा और बढ़ा ही रहेगा अगर प्रेगनेंसी हुई, लेकिन अगर घट गया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है। इन सभी का इम्पैक्ट क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो ये लाइनिंग टूटेगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो इस लाइनिंग की रिपेयरिंग होगी और एस्ट्रोजन का लेवल जब टॉप पे रहेगा तो ये जो लाइनिंग है एकदम मोटी हो जाएगी और धीरे धीरे फिर जब एस्ट्रोजन का लेवल फॉल होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होगा तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान ये देना है, कुछ कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये एलएच का मैक्सिमम लेवल है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज, एलएच क्या है, ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या है, फॉलिकुलर सेल्स डेवलपिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है, रिपेयरिंग वर्क करा रहा है, मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग रिपेयरिंग वर्क कर रहा है ये, और इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी मेंटेन कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो एक बार फिर से देखें, एस्ट्रोजन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने के साथ साथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग को रिपेयर करा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ये एंडोमेट्रियम को मजबूत करके, यूट्रस को मजबूत करके उसको इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रखता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ कराता है। एलएच क्या करता है, ओवुलेशन कराता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ menstrual cycle as well as various hormones those are released by the pituitary and ovaries। क्वेश्चन बेटा बोर्ड में कैसे पूछे गए हैं, आपको बताना है व्हाट आर द सर्टेन ओवेरियन हार्मोन्स एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, तो ओवेरियन हार्मोन्स में आपको बताना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन को कौन सेक्रेट करता है, थीका सेल्स करती हैं, और प्रोजेस्टेरॉन को कौन सेक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ठीक, इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। एफएसएच और एलएच को कौन सिक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको जब स्टिमुलस मिलता है तभी ये इन हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप घर पे इसको बनाएंगे, इस ग्राफ को बनाएंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है, पेज नंबर 50 पे ये दिया गया है। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे हमारे सेंड कर सकते हैं, दैट इज़ 9140558523। इस पर आप मैसेज करें, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। ओके देन स्टूडेंट, सो इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एस्ट्रस साइकिल। सो फॉर द सेम, इसको बेटा हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा टास्क है। आई एम इरेजिंग दिस। Okay then students, so in the last we will discuss about the estrous cycle, estrous cycle। तो mammals
mammals other than primates, यानी अगर हम प्राइमेट्स को छोड़ दें जिसमें कौन कौन आते हैं, आपको मालूम था कि प्राइमेट्स में कौन कौन आ रहा था बेटा, प्राइमेट्स में हमने ह्यूमन बीइंग को रखा था, इसके साथ साथ एप्स थे और मंकीज़ थे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इनके अलावा जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें कौन सा साइकिल देखने को मिलता है, ईस्ट्रस साइकिल। सो मैमल्स अदर देन प्राइमेट्स हैव estrus cycle, okay. It means that they do not menstruate, and their cycle run during breeding season, and estrogen level increases at the time of breeding, resulting in sexual urge known as period of heat, What is the conclusion साइड पे क्या निकला, ऐसे मैमल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है उनमें क्या होती है, ईस्ट्रस साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या हुआ, वो मेंस्ट्रुएट नहीं करते और जो उनमें रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल अर्ज है एक ब्रीडिंग सीजन के आसपास होता है। जैसे आपने डॉग्स में देखा होगा, ठीक है, कैट में देखा होगा, ठीक है, काउज बोफालोज में देखा होगा कि उनमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, सेक्सुअल अर्ज होता है और उसके बाद वही उनका ब्रीडिंग सीजन होता है और वो मेंस्ट्रुएट नहीं करते, मतलब उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो अगर मेंस्ट्रुएट नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी वहाँ पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ईस्ट्रस साइकिल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिखा भी है, मैमल्स अदर देन primates have estrus cycle, they do not menstruate and their cycle run during the breeding season only, इनको हम seasonal breeder भी कहते हैं, due to estrogen hormone that increases at the time of breeding, या हम कह सकते हैं at the time of ovulation, यानी जब उसमें ओवुलेशन होना होता है तो उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन द सेक्सुअल अर्ज एंड दैट कंडीशन इज नोन एज पीरियड ऑफ हीट। यानी उस समय जो एनिमल है उसमें सेक्सुअल अर्ज होती है और वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है या और भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको वो दिखाता है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो आप डॉग, काउज, बोफालोज, हॉर्सेस इन सबको ले सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान दीजिए बेटा नोट में, animals that have single estrus during breeding season is known as monoestrus, such as dog, deer, etc. ठीक है, यानी ऐसे एनिमल जो पूरे एक पर्टिकुलर ईयर में सिंगल ईस्ट्रस करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में उनमें ब्रीडिंग होती है, वो क्या है, डॉग और डियर। ऐसे एनिमल्स दैट हैव recurrence of estrus during breeding season, is known as polyestrus, क्या बोलते हैं उसको, polyestrus। फॉर एग्जाम्पल माउस, स्क्वायरल, सीप, हॉर्स, etc. मतलब
अगर एक से ज़्यादा स्ट्रेस है, बार बार हीट है, तो वो क्या है, पॉली स्ट्रेस, जिसमें आपने देखा माउस है, स्क्वायरल, सीप और हॉर्स वगैरह है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रेस डॉग और डियर में होता है। ओके, कुछ एग्जांपल अगर आप यहाँ बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉक्स, फॉक्स भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास and thank you very much for joining us, and I hope that after watching the video your concept will be clear, and if there is any doubt you can leave your doubt or queries on this number 914085558523। इस पे भी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, वहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, and like always keep smiling, have a nice day. Jai.